Hi Future Vidyas, welcome back to my YouTube channel, More from Shrishti. Today we'll be completing Asti Dhatu, that is fifth Dhatu, that is Rasa, Rakta, Mamsa, Meda. We have completed these four in our previous classes, and this is the fifth class in which we'll be Let's continue Asti Dhatu. Asti Dhatu is the fifth Dhatu, which is the hardest Dhatu located inside Mamsa. We know aesthetic Mamsa Dhatu, that is muscle coverer, Asti, that is bones, right? So it is the hardest Dhatu located inside our Mamsa. Next comes Vyutpatti. Vyutpatti As Dhatu plus Kathin Pratyaya. इन दोनों वर्ड से अस्थि वर्ड बनता है, दैट इज अस धातु प्लस कथिन प्रत्यय से अस्थि वर्ड बनता है. अस्थि का मीनिंग क्या है? स्टेबिलिटी और कर्नल ऑफ सीड, दैट इज आमलकी. अस्थि मीन्स स्टेबिलिटी और कर्नल ऑफ सीड, मतलब अस्थि का मीनिंग ये है. देन कम्स निरुक्ति ऑफ अस्थि धातु. अस्य ते क्षिप्यते अनेन इति अस्ति, मीनिंग विच इज नॉट थ्रोन आउट और डज नॉट डिके. उसका मीनिंग ये था. पहला क्या था? व्युत्पत्ति. व्युत्पत्ति क्या है? अस धातु प्लस कथिन प्रत्यय, विच मीन्स विच गिव्स स्टेबिलिटी. वी नो टू आवर बॉडी स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय अस्थि धातु, राइट? सो इसका काम क्या होगा? अस्थि मीन्स विच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी. एंड निरुक्ति अस्य ते क्षिप्यते अनेन इति, सॉरी, अस्य ते क्षिप्यते इति अस्ति, विच मीन्स मीनिंग नॉट थ्रोन आउट और डज नॉट डिके. नेक्स्ट कम्स सिनोनिम्स. अकॉर्डिंग टू अमरकोश, किक्कसा, which is a round structure. We know asti that are long bones are round in structure, right? Kulyasti, which means tubal or canal. ट्यूबल और कैनाल, दैट इज लॉन्ग रहते हैं, कैनाल टाइप रहते हैं, जिसमें बोन मैरो लाइक बोन मैरो लाइक इट हैज पोर्स एंड इट हैज कैनाल टाइप थिंग्स, राइट? And then Swedetam, dogs like the bones. Like it's usual thing ki dogs like chewing bones, right? So it is called as Swedetam, Meda stage. After Meda Dhatu, Asti Dhatu is formed, so it is called as Meda Teja. And Majja Kruta, it helps in formation of Majja. And Deha Dharakam, which maintains the body structure. Like obvious thing, if you don't have bones in your body, it's really obvious that you won't be able to stand, neither you'll be having any shape or size of your body. So क्या है? Dehadharakam means which maintains the structure, and then Skarkaram, which is a rough rough surface. And according to Shishruta, it is called as Sara, that is extract of body and remains in Mamsa Dhatu. Alright, next comes the Panchabhautika predominance. According to Acharya Chakrapani, Vayu and Prithvi Mahabhuta से बना है, whereas according to Acharya Dalhana, Prithvi plus Vayu plus Agni Mahabhuta. Okay, and then it is called as Hud. Hud इसका synonym like अस्थि धातु का और एक synonym है Hud. ओके, अकॉर्डिंग टू अमरकोश देख लिया, अकॉर्डिंग टू शिष्यवृत्ति भी देख लिया. एंड वही पांचभौतिक प्रिडोमिनेंस, अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी इट इज वायु एंड पृथ्वी, वेयरएज अकॉर्डिंग टू आचार्य दलहना इट इज पृथ्वी, वायु एंड अग्नि. ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स स्थान एंड स्वरूप. वी नो आवर होल बॉडी पार्ट, सब जगह पे बोन्स प्रेजेंट है, or almost every part of our body, either it is head, back, arm, forearm, and ear, leg, chest, सब जगह पे present है. So site of अस्थि is all bones. Okay, अस्थि धातु क्या क्या? All bones. अस्थिवाह स्रोतस and अस्थिधर कला. These are three. Okay. First क्या है? All bones. Next comes अस्थिवाह स्रोतस and next comes अस्थिधर कला. अस्थिवाह स्रोतस क्या है? अस्थिवाहनाम स्रोतसाम मूलम मेदोर मूलम जगनम च. Okay, अस्थिवाहनाम स्रोतसाम मूलम. Like what are the मूल अस्थिवाह स्रोतस? मूल स्थान ऑफ अस्थिवाह स्रोतस क्या है? मेद. ठीक है, मेद मूलम जगनम च, मतलब जगनम मतलब क्या बताए? हिप बोन. एंड मेद धातु, एज वी ऑल नो, मेद धातु. See, मेद धातु will be pathological root and clinical root, whereas jaganasti, that is hip bone, plays as a functional root because it carries the function of dharana. Just imagine yourself being without a hip bone. Do you really think will you ever be able to stand? If you perform anything, no, right? You won't be able to sit, you won't be able to stand, you are incapable of doing anything. So Jaganasti, that is hip bone, it is a functional root, whereas Meda Dhatu, it is a pathological root and clinical root. Obvious thing, if you consider it that way, first will be Rasa, Rakta, Mamsa, Meda. If Meda Dhatu is not only formed properly, then obvious thing है कि अस्थि धातु भी नहीं बनेगा अच्छे से. So that is why it acts as a pathological root and clinical root. अस्थिधर कला.
अस्थिधर कला, कला is a membranous structure which forms the marginal boundaries inside the cavities of organs. ठीक है, 7 कला रहते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू दलहना, पुरुषधर कला एंड अस्थिधर कला आर सेम. इन्होंने क्या दिया है श्लोका, या एव कला पुरुषधर स एव अस्थिधर. This whole shloka is almost equivalent to saying that Purushadhara Kala and Asthidhara Kala are same. See what is it saying? Ya eva Kala Purushadhara. See, Ya eva Dhara Purushadhara सा मतलब क्या है, सेम है. इधर वर्ड सा का मतलब क्या होगा, सेम. एव अस्थिधर. ओके, व्हाई इज इट सेम? आई विल टेल यू द रीजंस. पक्वाशय and अस्थि धातु are the sites of वात दोष. And you know, अस्थि धातु एंड वात दोष, अस्थि धातु एंड वात दोष आश्रय आश्रय भाव संबंध में आते हैं. एंड वात दोष का प्रधान स्थान कौन सा है, पक्वाशय. सेम फॉर बस्ती चिकित्सा इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अस्थि डिसऑर्डर्स. ओके, etiology and treatment of dysfunction of पक्वाशय and अस्थि धातु are same. अगर आपको डिसफंक्शन मिलेगा पक्वाशय एज वेल एज अस्थि धातु में, तो सेम टाइप का ट्रीटमेंट दिखेगा. Balanced and unbalanced state of Pakvashaya affects Asthi Dhatu. See, अगर if you correlate the points, I'll tell you it properly. See, if you consider Vat is the main thing, उसका main side कौन सा होगा, Pakvashaya. And it has an आश्रय भाव संबंध किसके साथ, अस्थि धातु के साथ. So obviously अगर प्रधान जगह पे वात को डिस्टर्बेंस मिलेगी तो इनडायरेक्टली इट विल अगेन इफेक्ट दी अस्थि धातु. ऑलराइट, पुरुषधर कला is same as अस्थिधर कला. According to modern medicine also, chronic diseases of colon lead to arthritis. ये ऑब्जर्व की हुई चीजें या फिर रिसर्च की हुई चीजें. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन, क्रोनिक डिसीजेस ऑफ कोलन मतलब ऑब्वियसली यू कैन कोरिलेटेड विद द पक्वाशय, लीड्स टू आर्थराइटिस. देन कम्स टाइप्स कौन से, वेदावादी एंड शल्यतंत्रावादी वेद. शल्यतंत्र वेद, वेदावेदी का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स किसने बताया था इसके बारे में, अथर्व वेद, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, चरक संहिता, कश्यप संहिता, इन लोगों को वेदावादी के अंडर इंक्लूड किया जाता है. They say, like according to the followers of the knowledge, these are like this number is given through by referring through Vedic literature. तो क्या होगा, 316 नंबर जिसमें दंत, उलूखल मतलब टूथ सॉकेट एंड नख सब इंक्लूडेड है. ये वाला किस कौन इंक्लूडेड था, ये बात अच्छे से याद रखो क्योंकि यूजुअली एमसीक्यूज में पूछा जाता है. एंड नेक्स्ट कम्स शल्यतंत्रा वेद, दैट इज सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश संहिता एंड भेल संहिता को इंक्लूड किया जाता है. इन्होंने 300 नंबर का कंक्लूजन कैसे लाया, इट इज अकॉर्डिंग टू द नॉलेज गिवन बाय द धन्वंतरी. ऑलराइट, टाइप्स कौन से हो गए, वेदावधी एंड शल्यतंत्रावधी. वेदावधी के अकॉर्डिंग 360 एंड ये वैदिक लिटरेचर से कंक्लूजन पे आए हुए हैं. शल्यतंत्र वेद ये 300 इन नंबर है. लॉर्ड धन्वंतरी ने जो ये दिया था, क्या वो नॉलेज दिया था, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज 300 इन नंबर. एंड ये भी बात याद रखना कि वेदावधी में दंत, उलूखल, नख को इंक्लूड किया जाता है, वेयर एज शल्यतंत्र वेद में नहीं किया जाता है. ओके, देन कम्स बेसिस ऑन षडांग. शाखा अनुसार ये हमने इसमें भी पढ़ा है, क्या है, रचना शरीर में अस्थि वाले चैप्टर में, अस्थि शरीर चैप्टर में पढ़ रखा है. तो ये जस्ट गो थ्रू दिस. शाखा अकॉर्डिंग टू चरक, सुश्रुत एंड मॉडर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग है. जस्ट मेक श्योर यू आर प्रॉपरली इनटू इट बिकॉज कंफ्यूजन होता है पेपर लिखते वक्त. ठीक है, एंड नेक्स्ट कम्स द बेसिस ऑफ शेप. इवन दिस इज गिवन इन अस्थि शरीर. आई जस्ट रीड इट. कपाल अस्थि मतलब फ्लैट बोन, रुचक अस्थि मतलब टीथ, तरुण अस्थि मतलब कार्टिलेज, वलय अस्थि मतलब कर्व्ड और एन्युलर बोन्स एंड नलक अस्थि मतलब ट्यूबुलर बोन्स. नलक अस्थि मतलब नलक मतलब लॉन्ग बोन्स आएंगे, वलय मतलब कर्व्ड बोन्स, लाइक ये रिब्स आते हैं ना वो आते हैं, वो वाले. एंड देन तरुण मतलब क्या है, कार्टिलेजेस. एंड नेक्स्ट कम्स टीथ. रुचकास्थि मतलब टीथ एंड कपालास्थि मतलब फ्लैट बोन्स. ठीक है, नेक्स्ट कम्स फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज. अस्तिनी देहधारणम मध्या पुष्टि च. उसका मतलब क्या है, अस्तिनी देहधारणम श्लोका में ही मीनिंग है. अस्तिनी देहधारणम मतलब विच देह धारणा का मतलब क्या है, सपोर्ट करता है.
मज्ञा पुष्टि, which means which gives nourishment to मज्जा धातु. ओके ये क्या है, सपोर्ट्स बॉडी वर्टिब्रल कॉलम, मेंटेन्स द इरेक्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी, स्कल, एंड ये बहुत सारी कॉमन चीजें हैं विच यू नो. स्कल मतलब स्कल का क्या काम होता है, वर्टिब्रेस का काम क्या होता है, रिब्स का क्या काम होता है, फलाना ढमकाना. यू जस्ट गो थ्रू इट, एंड अगर नहीं भी पढ़ लेते ना तो लिख सकते हो खींच के कुछ भी. एंड नेक्स्ट कम्स धारणा. धारणा मतलब सपोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, होम्योस्टैसिस एंड मज्जा पोषण. अकॉर्डिंग टू अष्टांग सूत्र आचार्य सुश्रुत एंड सुश्रुत शारीर स्थान 5th चैप्टर 21st श्लोका, उन्होंने क्या बोला है, फंक्शन ऑफ, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है. अगर तुम लोग एक पेड़ देखते हो, जस्ट इस सबको भूलो. इफ यू लुक एट अ ट्री, यू नो उसका मेन स्टैंडिंग सोर्स ही उसका बार रहता है, मतलब बार्क रहता है, वो जो ट्रंक रहता है ना वही स्टैंडिंग सोर्स है. व्हाट इफ यू ब्रेक दैट ट्रंक, क्या ट्री रुक पाएगा, लाइक खड़ा भी हो पाएगा? इज दैट इवन पॉसिबल फॉर दैट? ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल. Similarly, according to Sushruta, they have said that function of Asti Dhatu is compared with the strong bark of a tree. Due to bark, tree can stand. Similarly, we can maintain posture. ठीक है. नेक्स्ट कम्स कफ दोष. ये देखो, पृथ्वी अग्नि अनिल आदि नाम संगात श्लेष्मान कृत खरत्वं प्रकरोति अस्य जायते अस्ति ततो नृणाम. कफ दोष ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा बट समझ लो. कफ दोष का फंक्शन क्या है? लाइक कफ दोष का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे बाइंड वायु एंड पृथ्वी टुगेदर को बाइंड करके रखता है अंडर द एक्शन ऑफ अस्थि धातवाग्नि. ठीक है. एंड मेक्स द अस्थि स्ट्रॉन्ग, रफ एंड हार्ड. पृथ्वी प्लस कफ स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, पर वायु का काम क्या है, ड्राई, रफ एंड लाइटर चीजें बनाना. नेक्स्ट कम्स उत्पत्ति. उत्पत्ति सिंथेसिस, इट इज एम्ब्रियोनिक लाइफ में. पहली बात, सिंथेसिस बनता कब है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में. यहाँ पे एम्ब्रियोनिक लाइफ में मैटरनल रेसेस से, वेयरएज आफ्टर बर्थ फ्रॉम डाइजेस्टेड आहार. पोस्टनेटल फॉर्मेशन, अस्थि न्यूट्रिएंट्स ऑफ अस्थि धातु अंडरगोस अस्थि धातवाग्नि, पोष्य अस्थि धातु एंड पोषक अस्थि धातु बनते हैं. त्रिविध पोषण ऑफ अस्थि धातु, स्थूल अस्थि धातु, अस्थिमल, केशलोमस मशरू, ये वाली चीज याद रखो, केशलोमस मशरू अस्थिमल के अंडर आते हैं. एंड प्रिकर्शन ऑफ मज्जा. रोल ऑफ धातु पोषण न्याय इन फॉर्मेशन, शिरदधि न्याय पोषक अस्थि को पोष्यास्थि बनाते हैं. एंड नेक्स्ट कम्स केदारकुल्य न्याय में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अस्थि वेया अस्थिवाह स्रोतस. ऑलराइट. खले कपोत न्याय मतलब एक्शन ऑफ धातवाग्नि. आई टेल यू वन थिंग, सर नो दैट इज धातु पोषण न्याय का कुछ भी किरकिरी नहीं है. इट्स सेम पैटर्न. अभी अगर तुमने देखा ये क्षीरदधि न्याय, इसका काम क्या होगा, हर एक धातु में पोषक वाले धातु को पोष्य में कन्वर्ट करना. वही केदारकुल्य न्याय को क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अस्थि व अस्थिवह स्रोतस, मतलब जो धातु रहता है उसको उसी स्रोतस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना. एंड फाइनली क्या आएगा, खले कपोत न्याय मतलब एक्शन ऑफ अस्थि धातवाग्नि. एंड नेक्स्ट कम्स मल, केशलोम अस्ताना मल मतलब हेयर एंड केशलोम अर्धी मल. एंड उपधातु क्या है, दंत अकॉर्डिंग टू शरांगधर. ये जिस आचार्य ने जो उपधातु बोला है ना वो बहुत अच्छे से याद रखो, क्योंकि एमसीक्यूज में कंफ्यूजन करके पूछते हैं. श्री शरांगधर ने क्या बोला है, दंत बोला है. सुश्रुत ने क्या बोला है, नख बोला है. ठीक है. आश्रय आश्रय भाव के अकॉर्डिंग क्या है, वात को वायु और आकाश. वात क्या है, वायु और आकाश प्रिडोमिनेंट है. मेरे अस्थि वायु एंड पृथ्वी, इन दोनों में वायु बहुत कॉमन है. एंड अस्थि आकाश फॉर्म्स अ मेडुलरी कैविटी. अभी देखो मेडुलरी कैविटी किससे बनता है, आकाश महाभूत से बनता है. इसलिए अस्थि और वायु इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में आते हैं. अगर अस्थि क्षय हो रहा है तो वात वृद्धि होगा, वाइस वर्सा ऐसे होगा. ठीक है. काल अकॉर्डिंग टू पारशरस 6 दिन लगता है. And according to Sushruta 12060 kala, which is nothing but 20 days. And healing of a fractured bone के लिए 21 days लगते हैं. Okay. Next comes धातु सार लक्षण. पार्ष्णि गुल्फ जन्म रत्नी जत्रु चिबुक क्षीर पूर्व स्थूलाः स्थूल अस्ति नख दन्तश्च अस्ति सार मे महोत्साह क्रियावंत केशलोमस क्लेशसः सार अस्ति शरीर
भवंती आयुष्यांतश्च हील्स पर्नी एंकल गुल्फ। मतलब अगर अस्थि धातु बहुत सही से बना है तो उनके सारे लाइक बॉडी पार्ट्स लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज रहते हैं। एंड अस्थि सारे इंडिविजुअल आर विल बी वेरी इंथुजियास्टिक, दैट इज महोत्साही रहते हैं। एंड देन सिंस द बोन्स गिव द गुड स्ट्रेंथ एंड पावर, उनके पास काम करने की शक्ति बहुत अच्छी रहती है। यही सारी चीजें दे रखी है। एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ये अकॉर्डिंग टू चरक है, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग हेड, शोल्डर, टीथ, नेल्स, बोन्स, मैंडिबल ऑफ अस्थि, सारा पर्सन आर ब्रॉड, प्रोमिनेंट एंड लार्ज इन साइज, ये सब दे रखा है। लास्टली कम्स वृद्धिक्षय लक्षण। वृद्धिक्षय लक्षण क्या है? वृद्धि मतलब अस्त्य, अध्यस्त्य, आदि दंतश्च। अस्त्य, अध्यस्त्य दैट इज एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ रहता है वृद्धि में। क्षय में अस्तन्य, अस्थितोद, शदनम, दंत, केश, नक्कादिशु। अस्तन्य, अस्थितोद मतलब अस्थितोद में मतलब जॉइंट्स में वगैरह पेन हो रहता है। एंड फॉलिंग ऑफ टीथ, नेल्स एंड हेयर रहता है। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कल मज्जा धातु कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा भेज दो। थैंक यू।